مہینہ شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم کالر ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر السلام علیکم. ابھی بات ہوئی، ابھی سلام ہوا ہے. جی کیا سوال؟ سر میرا سوال ہے کہ میرے میاں نے نا میرے اکسانے پر مجھے طلاق دی ہے. کہنے لگے کہ میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. تو میں نے یہ دن میں 3-4 مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا لو 1000 دفعہ طلاق ہوئی. انہوں نے کہا کہ 2000 دفعہ میری طرف سے طلاق ہوئی. ہاں جی. اچھا یہ 1000 دفعہ طلاق ہے نہیں سوری. اچھا 1000 دفعہ طلاق ہے آپ کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک طلاق کی نیت سے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ نا. اچھا اب اس مسئلے کا آپ حل چاہتی ہیں، وضاحت چاہتی ہیں وہ نا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ نا مطلب یہ سانس کا وقفہ ہوتا ہے اس میں. اچھا کس کا وقفہ ہوتا ہے؟ سانس کا وقفہ. مطلب 3 طلاق میں سانس کا وقفہ ہونا ضروری ہے. اچھا ہاں جی. تو اس لیے نا وہ اچھا خیر یہ آپ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک طلاق کی نیت سے کہا تھا، میں نے 3 طلاق نہیں کہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم کچھ نئی بات ہم نے آپ سے سنی ہے، لیکن علماء کرام ہی بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا بنا. آپ کا وہ جو جملہ ہے آپ کے شوہر کا اس کی بھی وضاحت کریں گے، اور یہ سانس کا وقفہ یہ بھی بتائیں گے مفتیان کرام. اچھا جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز جو ہے مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس سوال کریں، ہم سن رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں آواز کی. سر جی سوال جو ہے وہ تھوڑا لمبا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. پوچھئے. وہ یہ تھا کہ میرے جو ہے وہ نانا کا گھر تھا. اچھا. نانا کا گھر ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بس مطلب ان کی 2 بیٹیاں تھیں، میری امی اور میری خالہ. ٹھیک ہے. تو میری خالہ جو ہے وہ انہوں نے میری امی کے نام کر دیا تھا. تو وہ مطلب کاغذی طور پہ ابھی نام نہیں ہوا، لیکن انہوں نے زبانی بول دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے میری بہن کا گھر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ بہن کا گھر یہ ہے کہ اب میں جو ہوں میں باہر ہوں، اور وہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا گیا ہے. اچھا. تو میں باہر ہوں، اور میری جو ہے یہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں اپنا، اور اس گھر کا جو کرایہ ہے وہ میری 2 بہنیں جو ہیں وہ ان کو جا رہا ہے کرایہ. اچھا. ٹھیک ہے. میں اس کرائے میں سے مجھے کچھ نہیں مل رہا. صحیح. مطلب وہ انہی کو میں نے دے دیا کہ بھئی وہ لوگ اپنے جو ان کے اخراجات ہیں وہ ان کو پورا کریں، کرائے میں سے کور کر لیں. اچھا اب اس میں یہ سوال بتائیں کہ مجھ میں جو ہے مجھے اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ یا نہیں ہوگی. اور ایک چیز اور کہ میرے پاس میں ابھی باہر ہوں تو وہ کرائے کے گھر پہ ہی رہ رہا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے. لیکن پچھلے سال میں نے کچھ پیسے جمع کر کے میں نے جو ہے ایک فلیٹ کی بکنگ ڈالی تھی. صحیح. اور وہ فلیٹ کی بکنگ کا ابھی سلسلہ چل رہا ہے، مطلب انسٹالمنٹ چل رہی ہیں. جی سمجھ گئے. پیسے کمپلیٹ ہوں گا. جی ابھی سمجھ میرے پاس وہ پیسے موجود ہیں، لیکن ابھی جو شیڈول بنا ہے اس کے مطابق 1-2 مہینے کے اندر مجھے پیمنٹ کرنی. صحیح. تو یہ بتائیں کہ اب جو میرے پاس جو پیسے بچے ہوئے ہیں گھر کے جو میں نے بھرنے ہیں، جی اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا کہ نہیں؟ یہ کب سے رکھے ہوئے ہیں پیسے آپ کے پاس، یہ بھی بتا دیں. یہ پیسے رکھے ہوئے کب سے آپ کے پاس، یہ بھی بتا دیں. سر سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات. یہ پیسے آپ کے پاس کب سے رکھے ہوئے ہیں جو آپ نے ریمیننگ اماؤنٹ دینی ہے فلیٹ کی، یہ کب سے آپ کے پاس ہے، کتنے عرصے سے؟ یہ ابھی 1-2 مہینے کے اندر جمع ہوئے ہیں. جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ بیٹا میں لیاقت صاحب سے سہیل صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. میری بیٹی کی شادی کو 4 سال ہو گئے، گھر بیٹھی ہے. جب اس کی نکاح ہوا تو 5 لاکھ روپیہ انہوں نے لکھا تھا بھائی یہ طلاق دیں گے تو ادا کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ ناراض ہو کے آئے گی تو 5000 روپیہ مہینہ خرچہ دیں گے. اچھا. 5 تولے سونا تھا بیٹا. اچھا. وہ انہوں نے کہا، اور 9 مہینے میری بیٹی ان کے گھر رہی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. 9 ماہ کے بعد اس کے جو میاں ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں اور خوشی خوشی گئے ہیں. انہوں نے باہر سے ایک دفعہ 18000 روپیہ بھیجا ہے، اور بھائی بھابھی بہن 3 آدمی تھے. انہوں نے کہا پیسے ہم نے دے دو، بیوی کے نام پہ بھیجا ہے. پیسے بیوی نے دے دیے جیٹھ اور نند کو. اس کے بعد جو ہے نا 1 سال میاں ادھر رہا ہے، پیسے لے کے مار کوٹ کے گھر سے باہر نکال دیا. بھائی یہ ادھر رہے گی تو اس کے میاں اس کے نام پہ پیسے بھیجیں گے. کسی نے بتایا، ہم گئے بیٹی کو گھر لے آئے.
अच्छा दामाद को बताया, उसने कहा ठीक है मुझे पता चल गया। साल रहा है, हज भी पड़ा है, दाढ़ी भी रखी, सब कुछ किया है, फिर वापस आ गया। वापस आके अपनी बीवी को पूछा भी नहीं है भाई मरी है जिंदा है किधर है क्या हुआ। फिर बेटा हम जो है ना गए हैं उसके पास 3 दफा गए हैं, 3 दफा उसके बाप ने जाके हाथ जोड़े, मेरी बेटी का कोई कसूर है तो बता दो। कहते हैं चले जाओ, मैंने नहीं लानी आपकी बेटी। फिर अच्छा चौथी दफा मैं माँ उसकी गई हूँ, मैंने भी मिन्नत की है हमारी बच्ची का कोई कसूर है तो वो बता दो। कहते हैं आप चले जाए, मैंने नहीं लाना उसको। और आगे से रिश्तेदारों के आगे बातें करते हैं उसको मैं घर ले आऊं तो मैं शरीयत से बाहर निकलता हूँ, ये वो। फिर हमें तो ये नहीं बेटा पता चलता हमारी बेटी का कसूर क्या है। अच्छा 4 माह हो गए, 4 साल हो गए मेरी बेटी मेरे पास बैठी है। ठीक है वो ना को खर्चा जेवर उसका वो 5 तोले लिखे हुए तो वो उसने उसे वक्त ही बेच दिया। और अच्छा। बेटा बच्ची का कसूर भी नहीं बता रहे, घर भी नहीं लेके जा रहे और बच्ची के बारे गलत बातें रिश्तेदारों को बता रहे हैं। अच्छा। लिहाजा मैं अच्छा खातून हम बात सुने खातून, असल में बहुत तवील हो गई आपकी कॉल, इतने में हम बहुत सारी कॉल ले लेते हैं। आपके दुख में भी हम बराबर के शरीक हैं। दूसरा, अगर आप जो बता रही हैं और वाक़यतन अगर ऐसा ही है, क्योंकि अल्लामा साहब हमेशा ये कहते हैं कि सरात के साथ के दोनों रुख तस्वीर के हमें नहीं मालूम होते जानिबैन के, लेकिन अगर जैसा आप कह रही हैं वाक़यतन ऐसा है तो यकीनन वो जुल्म कर रहे हैं और आप जो है मजलूम ठहरी। बहरहाल उलमाए किराम इस पर रोशनी डालेंगे कि ऐसे में उस बंदे के लिए क्या हुक्म है और आपके लिए क्या हुक्म है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सलमान बेटा बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ। खातून फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे आपकी तिलावत सुननी है, आप शहर में मुझे तिलावत सुना देंगे बेटा? मेरी तिलावत आपने सुनी है कभी? मेरी तिलावत जी मैंने सुनी थी, आपने पढ़ी थी, मैंने एक प्रोग्राम में सुनी थी आपकी तिलावत। तो मुझे सुननी है, आप मुझे थोड़ा सा सुना दीजिएगा प्लीज। अच्छा नहीं अभी तो कुछ सवाल शुक्रिया बेटा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या सवाल है भाई आपका? जी जी सर मेरे 2 सवाल हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। अच्छा बताइए, पूछिए सर। ये एक सवाल ये है कि हम 27वीं को निकाह कर सकते हैं? ठीक है। और क्या सवाल और है? सर एक क्या खतीब के बगैर घर में जुमा पढ़ सकते हैं? किसके बगैर? खतीब के बगैर? हाँ जी, घर में जुमा? मौलवी के बगैर। जी जी। अच्छा नमाज जुमा घर में, ठीक है जी ठीक है। जी। अच्छा और क्या बात? चाहिए क्योंकि जवाब अभी चाहिए क्योंकि मैं अभी इफ्तारी के लिए चला जाऊंगा। अच्छा अभी दे देते हैं। अलामा साहब इनका जवाब दे दें जरा, घर में जुमा पढ़ाना चाहिए। जज्बा ईमानी उस सब इज्तिमा और ये आप हजरात 27वीं शब को 27वें दिन को ये निकाह करना चाहते हैं, बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज और नहीं अच्छी है। भी बात है, मुबारक देने कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, खतीब के बगैर जुम्मा कायम करना, बात यह है कि खतीब की एक अहमियत होती है और फिर जुम्मा वो कायम कर सकता है, नमाज वो पढ़ा सकता है कि जो शरीयत का पाबंद हो और तमाम जो अहकामात शरइया हैं उनको जानता हो, खुतबा देना जानता हो, ये तमाम चीज़ें जानता हो। तो अब अगर कोई घर में कोई फ़र्द जानता है और वो शरीयत का पाबंद है और वो जुम्मा पढ़ा सकता है, खुतबा भी दे सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई वो मजाके की बात नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये भी समात फरमा लें कि जुम्मा इज्तिमाइयत से है और जो पिछले उलमा वो ये फरमाते थे कि बड़ी बड़ी मसाजिद में जुम्मा हो, ये ज़्यादा बेहतर है कि लोग जमा होते हैं और छोटी छोटी मसाजिद में ना करवाया जाए। लेकिन बाद के उलमा ने इसको हरज उठाने के लिए जायज़ करार दिया। अब लॉकडाउन की सूरत में चूँकि मस्जिद में आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी तो जो घर में थे वो भी जुम्मा करा रहे थे। तो हमारा मशवरा ये है कि जब तक लॉकडाउन है और जुम्मे में जाने की इस तरह आपको इजाज़त नहीं, तो आप अपने घर में जुम्मा ना करवाएं। हमारा मशवरा ये, करवाएंगे हो जाएगा, कोई शरी बंदा पढ़ाए तो हो जाएगा, लेकिन आप जुम्मा ना कराएं बल्कि नमाज ज़ोहर जो है इनफिरादी तौर पर अदा फरमाएं। ठीक है भाई साहब, तसल्ली हो गई, इत्मीनान हुआ, इत्मीनान क़ल्ब हो गया माशाल्लाह। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सवाल है भाई आपका? सर मैं डॉक्टर मोहम्मद अली मस्कत से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल वेलकम टू द शो। सवाल क्या है? हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि आप रोजे की नियत करके आप रोजा रखते हैं रात के टाइम,
ٹھیک ہے, शहरी के वक्त खा के आप सो जाते हैं सही तो सही, सुबह आपके कपड़े खराब हो जाते हैं तो उस अच्छा। सिलसिले में क्या अहकामात है? बिल्कुल ठीक और है. दूसरा ये है कि प्राइस बॉन्ड्स आपके जब खुलते हैं तो उसकी प्राइस बॉन्ड्स की कीमत आपको जब मिलती है वो क्या, यानी उसके क्या अहकामात है? हलाल जो है या इनाम मिलता है वो जायज़ है या नहीं? ठीक है, ठीक है. दैट जी वाज हाँ। योर क्वेश्चन. ठीक है, इंशाल्लाह इसको शामिल. बहुत शुक्रिया. एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हैं कॉलर? जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक बंदे के पास अपनी जरूरियात के अलावा 1 लाख रुपए हैं. ठीक है. अभी ज़कात तो 7 तोला सोना पे वाजिब होती है, फर्ज अच्छा, होती है, तो ठीक 1 है. लाख जो कि उस पे मतलब कैसे वो ज़कात दे सकता अच्छा है? ठीक है भाई, इंशाल्लाह आपके सवाल का देंगे हम जवाब. नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं एतकाफ में बैठना चाहती हूँ, बहुत अच्छा। शौक है मुझे एतकाफ में बैठने का, तो ठीक है. हमारे घर में जगह नहीं है, तो मैं अपनी सिस्टर के घर बैठ सकती हूँ आप एतकाफ में? अपनी सिस्टर के घर बैठ सकती हैं या नहीं? ठीक है नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कुछ मजीद सवालात और तमाम तर सवालात के फिर हम देंगे यकबारगी ही इंशाल्लाह जवाबात. मिलता हूँ आपसे एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद. जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है. कुछ कॉल्स लेंगे और फिर इंशाल्लाह आएंगे जवाबात की तरफ. कुछ लाइव टेलीफोन कॉल्स से हमारे पास जो सवालात जमा हुए हैं वो भी, और जो मज़ीद हम कुछ कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह. तमाम तर जवाबात फिर ये के बाद दीगरे उलमाए किराम देंगे. जी कॉलर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम. जी हाँ, वी कैन कनेक्ट फ्रॉम अनदर लाइन, नो प्रॉब्लम. अस्सलामु अलैकुम. जी हेलो, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी अस्सलामु अलैकुम. जी भैया क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, सवाल मुफ्ती साहब से पूछना था. जी पूछिए, मुफ्ती साहब सुन रहे हैं जनाब. जी सवाल ये था कि जी. जैसे कि मैं इंडिया से बात करूँ तो इंडिया से. ठीक है, हम लोग सुनते हैं तो हमें आप प्लीज थोड़ा लाउड बोले, आपकी आवाज बहुत कम हो गई है. आप मोबाइल से दूर हो गए हैं क्या? थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज. लाइन ड्रॉप हो गई. अच्छा चलो ठीक है, एक और कॉल. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. जी क्या सवाल है आप? सवाल है आवाज कम आ रही है आपकी. जी सर, सवाल है मेरा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है कुछ अर्से पहले. अच्छा तो ठीक है. उनके माँ बाप जिंदा हैं, तो उन्होंने अच्छा. जो अमाउंट मुख्तस की थी अपनी बेटी की शादी के लिए, जी ठीक तो है. उसमें माँ बाप का क्या हिस्सा होगा, और अगर कोई हिस्सा नहीं होता तो वैसे माँ बाप के क्या परसेंटेज? अच्छा ठीक है. अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम. कॉलर. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि ये जो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ये इकट्ठे होने चाहिए या इसमें फासला होना चाहिए? अच्छा दुआ के लिए, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल. दुआ के लिए जो हाथ उठाते हैं ये इकट्ठे हाथ होने चाहिए, जुड़े हुए, या फिर फासला? क्योंकि हर तरह से दुआ करते हुए लोगों को देखा. भाई अच्छी बात की आपने, अच्छा सवाल है. जी एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी क्या सवाल है आपका? सर मोहम्मद सिद्दीक बोल रहा हूँ. मोहम्मद सिद्दीक भाई क्या सवाल? जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे साहबजादे कल जो है नूरियाबाद गए थे ठीक है. और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई. अच्छा ठीक है. और इतनी शदीद गर्मी थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. उन्होंने बहुत कोशिश की और उसके बाद उन्होंने जो है ना बड़ी मजबूरी के आलम में पानी पी लिया. अच्छा, मुज़ाफ़ाती इलाकों का सिंध के जब आगाज होता है तो गर्मी की शिद्दत हर बंदा हाँ जानता है. बिल्कुल, हाईवे पे थे वो, ठीक है हाईवे ना, पे. और बर्दाश्त नहीं हो रहा था. अच्छा नूरियाबाद. और तकरीबन रात 9 बजे फिर वो घर पहुंचे हैं. अच्छा गाड़ी खराब थी और गाड़ी जाहिर खराब है हो गई उनसे थी, बर्दाश्त कोशिश नहीं की हुई बनाने गर्मी. की, बनी ठीक है. नहीं और बर्दाश्त नहीं हो रहा था. अच्छा तो सर आप प्रोग्राम देखते रहिए पूरे इन्हिमाक के साथ, जवाब देंगे उलमाए किराम. अच्छा जी एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. जनाब क्या सवाल आपका? सर मेरी बेटी है, उसका नाम है हमना अदनान. हमना अदनान, बहुत अच्छा नाम. क्या सवाल? जी सर, अभी मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम मेरे वालिद साहब ने मोहम्मद हमान रख दिया है. हमान.
हमान रखती है। तो सर मैंने मालूमात करनी थी कि ये मेरे बेटे का नाम, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमान जादूगर का नाम था, अच्छा तो क्या ये नाम हामान। ठीक है? अगर कुछ इसके बारे में रहनुमाई मेरी हो सके थोड़ी सी। नहीं, अच्छा हा के ठीक है, साथ या इंशाल्लाह हा के साथ? हम इसका जवाब ले लेंगे। हाँ और हाँ, अच्छा बात सुने, जी हेलो, सर। ये हाथी वाला हा है इसमें या हलवे वाला, ये भी बता दें। ये सर हलवे वाला, ये हलवे वाला हाँ हा है, हाँ ठीक है। वो हामान है और ये हमान है सर। वो अच्छा। हामान था जादूगर और ये हमान है। तो इसका कोई मतलब भी पूछा था नाम का आपने किसी से या किसी सर आलिम मैं से? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई इसका खास मतलब पता नहीं चल रहा सर। गूगल भी किया, आगे पीछे कोई सही रहनुमाई नहीं हो रही। फिर नाम जहन में कैसे उतर गया जब उसका कोई मतलब? बहरहाल इसका जवाब देंगे आपको, आप प्रोग्राम देखते रहिए, मुफ्तियान कराम देंगे जवाब। जी एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? हेलो जी सवाल क्या है आपका भाई? जी, मुझे ये पूछना है, सुबह सहरी के लिए नहीं उठ पाते, लेट हो गए, ठीक है, सहरी रह गई, तो फिर रोजा रखने की क्या नियत होगी? अच्छा क्या ऐसे ही नियत कर लेंगे कि मैं अल्लाह की जात के लिए रोजा रखता हूँ, बिल्कुल या ठीक, कुछ मखसूस अल्फाज बोलने पड़ते? बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह जवाब देंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब से सवाल है जी मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, जब आप कीजिए सवाल, जी। आप सवाल करें, मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कल हमारी बहन ने फोन किया था ना कि तलाक के हवाले से, कि उन्होंने जो है 10 साल पहले अदालत में जाके तलाक ली खुला, थी ना। जी ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, तो उसमें जो है मुफ्ती साहब ने बोला था ये तरफा जो फैसला होता है उसमें तलाक नहीं होती ना। उसने दोबारा अभी 10 साल हो गए, शादी भी की हुई है ना, तो अभी मुफ्ती साहब ने बोला था ये ऐसे तलाक नहीं होती। तो हम ठीक। लोग उस आदमी के पास गए तो उसने जबान से जो है ना 3 दफा तलाक दे दी। तो अच्छा अभी कब गए आप इसके लिए उसके पास, कब गए? सुबह सुबह गए थे, अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन शादी जो है इसकी दूसरी जगह पे जो है 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, अभी क्या हुक्म साहब। होगा? हाँ ठीक है। जी, अभी हुक्म क्या होगा आगे? जो निकाह इसका है वो सही है या दोबारा ताज़ा कराना आप ऐसा होगा? करें, आप मेरी बात सुने, आप अभी लाइन पे रहे, मुफ्ती साहब अभी दें इनका जवाब, आप इनकी बात का जवाब दें, जरूरी है। देखें जितनी बात मैं कहूँ वो आप समात कर लीजिएगा, और बेहतर ये है कि चूँकि मामलात का ज़्यादा इल्म वहाँ जो मकामी मुफ्ती होंगे, दारुल इफ्ता होंगे, आप उनके पास जाकर सही तरीके से फ़रीक़ैन यानी जो साबिक़ा शोहर हैं और अभी ये आपकी बहन है, दोनों जाकर सही पूछ सकते हैं। जितना हमें पहुंचा हमने वो कल जवाब दिया कि यकतरफ़ा खुला नहीं होती। जब यकतरफ़ा खुला नहीं हुई थी तो ये उनके हाँ, वो कह रहे सुबह। आप सुने ये उनके निकाह में थी, तो निकाह में होते हुए औरत कहीं और निकाह नहीं कर सकती, तो वो जो दूसरा निकाह था वो मुनक्किद नहीं हुआ जिस तरह आपने बताया वो। अच्छा अभी आकर तलाक दी है, 3 तलाक़ें दे दी, तो अब 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। तो अब बेहतर ये है कि इस सिचुएशन को आप वहाँ पर मकामी दारुल-इफ्ता में ले जाएं और वहाँ पर इसको सही तरीके से पूछ लें। हुक्म हमने बता दिया है। अच्छा, नहीं, शोर के अभी यानी साथ। कि ये हाँ अब ये हुक्म होगा कि देखें ना, अभी उन्होंने तलाक दी है तो इद्दत गुजारने के बाद अब चूँकि पहले वहाँ पर जहाँ इन्होंने निकाह किया हुआ है वो निकाह मुनक्किद नहीं हुआ, तो अब चूँकि इनकी तलाक अभी हुई है तो इद्दत गुजारने के बाद फिर वो निकाह कर लें उनसे। अच्छा, इद्दत के बाद दोबारा निकाह होगा? जी हाँ, जी जी हाँ। बिल्कुल ऐसा हो। और इसमें कोई मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं, ये 2 गवाह बिठा दें, इजाबत कबूल कर लें, मेहर के साथ निकाह हो जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें लाइल्मी की वजह से ये इनसे खता हुई तो क्या इनके सर गुनाह? तौबा करें। तौबा करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे वहाँ मिल लें तो आप अपना कोई नंबर दे दो, आपसे मिल लेते हैं कराची जी में हम लोग। ठीक है, आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए बिल्कुल। मेरा। इस्माइल भाई, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब का नंबर इन्हें ज़रूर दें, अभी लिखवा दें राइट नाउ, ताकि ये इनसे रब्ता करके दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब फतवा दिया करते हैं, वहाँ आकर मिल लें और तमाम तर तफसीलात फ़रीक़ैन की या तो तहरीरी शक्ल में ले आएँ या आकर। ये बहुत अच्छी बात ये होता है सलमान भाई के ज़ाहिरी मसला कुछ और होता है, लेकिन जब वो सामने बैठते हैं ना तो मसला कुछ और निकलता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ज़ाहिरी तौर पर जो बात थी उसके मुताबिक फतवा क्योंकि दिया, यहाँ बारीक और इसमें गुनहगार भी शदीद होंगे और तौबा करनी भी लाजमी है। बिल्कुल ठीक है, और चूंकि बारीक इसके मामलात होते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, फिर नतीजा। अच्छा मुफ्ती साहब, खुशी की बात यह है गो के ये खुशी की बात है कि इन्होंने रुजू किया और प्लस इससे बड़ी खुशी की बात यह आपका प्रोग्राम कितनी तवज्जो से देखा जाता है कि एक कॉलर आपका एक ज़ेर ज़बर आपको दोबारा रीज्वाइन करके आपको याद है। और आज सुबह उन्होंने कांटेक्ट किया, जो आप कह रहे हैं, आप उलमा हजरात लोग आपकी ऐसे तकलीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस तरह आपने कहा था कि
وہ लौकी से मुतालिक कहा था, तो एक साहब ने फ़ौरन कॉल की थी, अल्लामा साहब ने एक बात की थी, एक साहब ने फ़ौरन कॉल की थी जो पंजाब से थे, पंजाबी ज़बान में बात कर रहे थे। तो इससे ये दिल बड़ा होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम को एक तो देख कर सुन रहे हैं पूरी तवज्जो से, दूसरा मज़ीद गुनाह से बच रहे हैं लोग, मज़ीद गुनाह से बच रहे हैं, बड़ी बात। अच्छा जी, कॉलर जी, लास्ट कॉल लेंगे बस, लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा सवाल ये है कि 50,000 रुपये उस पर कितनी ज़कात बनती है? 50,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन कराम, अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होंगे आपके सवालात के जवाबात मुफ्तियान कराम के साथ नेमत इफ्तार में। कुछ जी, वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है नेमत इफ्तार में। बज़्म उलमा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ आज हमारा पैनल है। सवालात जमा हो चुके हैं, इनके देंगे मुफ्तियान कराम जवाबात। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने सवाल किया कि रोज़ा रख कर तोड़ा, इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल गए और वालिद साहब भी जो है वो साथ थे, तो मुझे ये ख़दशा हुआ, गर्मी ज़्यादा थी, ख़दशा हुआ गाँव देहात में कहीं होंगे, तो मैंने जो है ना वो प्यास की शिद्दत की ख़दशे की वजह से रोज़ा तोड़ दिया। देखिए, याद रखना कि रोज़ा बाज़ सूरतों में टूटता है तो सिर्फ क़ज़ा लाज़मी होती है, और अगर ग़िज़ा और लज्जत साथ में शामिल हो जाए एक साथ, तो उसमें चंद सूरतों में कफ़ारा लाज़मी होता है, क़ज़ा भी होती है, कफ़ारा भी होता है। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि कफ़ारे में कि आपने नीयत रात से की हो। अगर नीयत आपने सुबह की है तो उस सूरत में कज़ा होती, कफ़ारा लाज़मी नहीं होता। तो बहरहाल इन्होंने बहुत सख्त गुनाह किया है, और ज़ाहिर है कि एक ख़दशे के पेश नज़र इन्होंने एक काम कर दिया, गुनाह है लेकिन कज़ा होगी, लेकिन इनको तौबा करनी होगी अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि हदीस पाक में है कि जिसने एक रोज़ा छोड़ा उसके बाद पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख ले तो वो उस एक रोज़े के का मकाम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरीके से भाई ने सवाल किया कि नमाज के लिए जाते हैं तो कतरे गिर जाते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता इनको ये बीमारी बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है, तो पाक कर लें, फिर वज़ू करके नमाज पढ़ लें। लेकिन बार बार होती है और एक वक्त की नमाज ही अदा नहीं कर पाते, तो उस सूरत में ये मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, इन्होंने पाकी हासिल कर ली, वज़ू कर लिया, अब उसके बाद अगर यही कतरों की बीमारी है, यही कतरे निकल रहे हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शरी माजूर हैं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कोई और सबब अगर हुआ वज़ू टूटने का तो फिर तो वज़ू टूट जाएगा, लेकिन अगर यही सबब है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही असर की नमाज का वक्त शुरू होगा तो ये वज़ू आपका खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, फिर पाकी हासिल करें, फिर नए सिरे से वज़ू करें। बिल्कुल ठीक है जी। खौफ के आंसू और खुशी के आंसू का दे दें, खौफ के आंसू आप बताइए ना, आप बताइए। बिस्मिल्लाह जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सवाल पूछा है कि ज़कात जो है देग ज़कात के ज़रिए चढ़ाई जा सकती है। देखिए, देग ज़कात अगर आप ये समझते हैं कि देग देकर और लोगों को बिठाकर खिला देंगे, तो जैसे हमने कल जिक्र किया कि ज़कात के अंदर तमलीक शर्त है, मालिक बनाना शर्त है। सही। तो अगर वहाँ बिठा के या किसी मज़ार पर बिठा के आप कहते हैं जी खाएं सारे के सारे लंगर, तो इस सूरत के अंदर तो ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, पैकेट्स बना के आपने पका के या कच्चा अनाज आपने दे दिया कि आपकी मर्ज़ी है, तो इस सूरत के अंदर ज़कात अदा हो जाएगी। ये जो देग चढ़ाने की उमूमी तौर पर सूरत होती है कि वहाँ बैठ के खाना है, इस सूरत के अंदर ज़कात अदा नहीं होगी। सही। नींद नहीं आती है। एक अम्मा ने सवाल किया और काफ़ी लंबी तमीद फरमाई कि रात को जागती हूँ, फिर दिन में सो जाती हूँ, फिर नमाज छूट जाती है, तो गुनाह तो नहीं है? तो गुनाह तो होगा। आपको कोई ऐसी तरतीब बनानी होगी कि कोई कहे, आप किसी से कहें आप कि मुझे उठाएं, कम से कम मैं नमाज पढ़ लूँ। काफ़ी गैप होता है फजर की नमाज के सही बात है, और ज़ोहर के दरमियान बहुत बड़ा गैप। आप 4 बजे उठ के पढ़ लें, आखिरी वक्त में 4:30 बजे उठ के पढ़ लें जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है। एक और बहन ने पूछा है कि भाई जो है वो तलाक देकर उसके बावजूद भाभी को अपने घर साथ रखा हुआ है, तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। कल भी हमने बात की थी, खास तौर पर सवाल आया था कि ये बिल्कुल हराम है, और ये माशरे के अंदर मुफ्ती साहब बढ़ता जा रहा है। रहमत साहब, इसमें उलमा ने ये फरमाया कि अगर वो ना माने तो कतई ताल्लुक कर लिया जाए उनसे। बिल्कुल, ये तो एक अलल ऐलान हराम काम कर रहा है, और ये लोगों ने एक मामूल बना लिया है कि तलाक़ें दे रहे, तलाक देते वक्त होश नहीं होता, तलाक दे देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो साथ रह रहे हैं और कह रहे हैं बस ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। तो जैसे मुसअब ने फरमाया कि ये शख्स जो है इससे कता ताल्लुक किया जाए, इससे सोशल बाइकाट किया जाए कि ये एक हराम फेल को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपना के बैठा हुआ और उसे ज़ाहिर परवान चढ़ा रहा है अपने फेल के जरिए दूसरों को। दूसरा ये कि एक एक लम्हा उसका एक एक लम्हा ये हराम के अंदर गुजरा है। घर के अंदर जितनी घड़ियाँ गुजरेंगी सारे मामलात होंगे। अच्छा। दूसरा भाई ने पूछा है कि घर है मेरा,
प्लॉट मैंने लिया है, क्या उस पर ज़कात होगी? तो देखिए, हाँ, बहन ने सवाल पूछा था कि हमने अपना घर बेचा है, घर बेचकर दूसरा प्लॉट लिया है, लेकिन ज़कात के पैसों से हमने उसको तामीर किया है। तो पैसे किसी से भी तामीर के करें, वो आपका ज़ाती घर है, उस पर कोई भी ज़कात नहीं होगी। ठीक है। प्लॉट फॉर सेल, जी, प्लॉट फॉर सेल के हवाले से कि कमर्शियल पर्पस के लिए आगे उनका इरादा है तो उस पर ज़कात होगी, क्योंकि वो तिजारत वाला उनसर वहाँ पर ऐड हो गया। बिल्कुल ठीक है जी साहब। जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि मोहब्बत में आंसू और खौफ के आंसू का दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इन दोनों का ताल्लुक दिल से है, ठीक है ना, और दिल की तर्जुमान ज़बान होती है, अकल की दिल की तर्जुमान ज़बान होती है, और बाज़ औक़ात आंखें भी तर्जुमान बनती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई सख्त बात कहूँ, आपको दिल में तकलीफ़ होगी, और ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो आंसू आएंगे। मैं आपको अच्छी बात कहूँ, दिल में राहत होगी, ज़्यादा राहत होगी तो आंखों से उसका इजहार भी होगा। तो राहत में भी आंसू और जी हाँ, जी हाँ, तकलीफ में भी। जी हाँ, खुशी के आंसू है ये। हाँ, खुशी तो बल्कि शुक्राने के भी आंसू होते हैं ना ये। तो जाहिर है कि ये दोनों की कैफियत अलग अलग है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत में आंसू हो या अल्लाह ताला के खौफ में आंसू हो, दोनों आंसुओं का नतीजा आपकी मगफिरत है। सुभान अल्लाह। आपके लिए मगफिरत है, आपके लिए रहमत है इंशाअल्लाह। तो दोनों आंसू आपके लिए अच्छे हैं, बेहतर हैं। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इनके शौहर ने इनके उकसाने पर, मेरी बहन क्या ऐसा मसला था कि आपने इतना उकसाया? मैं अपने भाई बहनों से कहूँगा कि खुदारा बहनों से भी कहूँगा कि अगर शौहर आपको पसंद नहीं आता, उसकी कोई आदतें पसंद नहीं, खुदारा तलाक के लिए इस तरह ना उकसाया करें। और अपने भाइयों से भी कहूँगा कि खुदा न खासा कोई बात आपको ना पसंद है तो तलाक के ज़रिए धमकी ना दिया करें, बिल आखिर मुँह से निकल जाती। बहरहाल आपके उकसाने पर उन्होंने कहा 1000 मरतबा तलाक दी, तो 3 तलाक़ें वाक़ हो चुकी हैं और बाकी तलाक़ें लग हो चुकी हैं, आप उन पर हराम हो चुकी हैं। अब आप उनकी बीवी नहीं रही। कह दिया अगर इस तरह के इतनी तलाक दी तो तादाद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक मरतबा कहे, एक एक करके 1000 मरतबा कहे, कोई ये कहे कि 3 तलाक़ें, कोई ये कहे कि एक तो ये तलाक दी, तो दोनों सूरतों में 3 तलाक़ें हो जाती हैं। जी हाँ, एक सूरत होती है जो गैर मदखुला की सूरत है, वो यहाँ बयान करने की खैर हाजत नहीं है, बाकी हो जाती है। फिर इसके बाद जो है एक सवाल ये हुआ कि नाना का घर है, उनका इंतकाल हुआ, उनकी 2 बेटियां हैं और एक खाला और एक इनकी वालदा। तो अब किराया जो है ना, ये कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है कि इनकी बहनों को जा रहा है, खाला ने इनकी वालदा को दे दिया था, अब इनकी बहनों को किराया जा रहा है, तो उस पर ज़कात है या नहीं? ज़ाहिर है कि वो मकान किराए पर आपने दिया हुआ है और ज़ाहिर है कि वो मकान, यानी यूँ समझ लीजिए कि माल तिजारत नहीं है, किराया आ रहा है उससे। तो अब जो किराया आ रहा है, अगर वो इतना बच जाता है या दूसरे निसाब में मिलकर इतना बच जाता है, इतनी रकम कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाए, तब तो ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। एक सवाल ये हुआ कि फ्लैट लिया है और 2 महीने में पेमेंट करनी है कि 2 महीने में, तो कुछ रकम मेरे पास जमा हुई है। अब अगर इसके सिवा कोई और आपके पास चीज़ें नहीं हैं और यही रकम है, तो ये रकम आप पर दैन है, कर्ज है, वो आपको अदा करना है, तो इस पर ज़कात नहीं होगी। बिल्कुल जी अल्लामा साहब। जी, एक भाई ने पूछा है कि रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया तो क्या सूरत होगी? एक तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि रोज़े की हालत में एहतिलाम होने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया तो आप गुस्ल कर लें, सिर्फ आप बाकी कुल्ली उसी तरह करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, सिर्फ मुबालगा नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब ऊपर। और रोज़ा बहन का जो सवाल था ना कि वो शोर जुल्म कर रहे थे, दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला, सही सलमान गुल साहब ने भी दुआ की है, उस बहन ने जो अपनी, हमने बिल्कुल तसलसल से उनकी बात को सुना, लेकिन उसका नतीजा ये था कि भाई ये सारा मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस बहन के लिए आसानी का मामला फरमाए। ऐसी बहुत सारी मुफ्ती साहब बहन बेटियां देख रहे तो उनको भी जरा अर्ज कर। जी हाँ, आप फरमाइए। वो आप अर्ज कर दें, भाई देख रहे हैं इस वक्त, तो हम तमाम उलमा आपको अर्ज करते हैं कि इस तरह ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर बड़ा करम फरमाएगा, आप रुजू कीजिए, उनको घर लाइए, और इस तरह जुल्म करेंगे तो ज़ाहिर है कि अल्लाह की बारगाह से बच नहीं सकता कोई। सब ऐसी कई बहन बेटियां घरों के अंदर बिला वजह, बगैर किसी वजह के बेटी, ये ज़माने जाहिलियत की बातें हैं, ज़माने जाहिलियत की बातें, और उनको परेशान करके रखा। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल हमें एक वक्फा लेना है और मैं बताते चलूँ, अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही है। किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, आपके साथ ज़्यादती होगी। आप किसी के साथ जुल्म ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, इन बातों से बचें। अल्लाह ताला का
نظام یہ مکافات عمل والا نظام ہے. کسی کے لیے آپ آج کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, کل آپ کے ساتھ ظلم ہوگا, آپ کی اولاد کے ساتھ ظلم ہوگا, تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار میں بزم علماء سجی ہوئی ہے. ہم نے لیے بہت سارے سوالات کالز کے ذریعے, ان کے ہو رہے ہیں جوابات. جی علامہ صاحب. ایک تو یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں صرف مبالغہ نہیں کریں گے, باقی جو ہے غسل سارے کا سارا کریں گے تو ہو جائے گا. تیسرا یہ بار بار سوال آیا کہ پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں پرائز بانڈ بالکل جائز ہے. اس کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے اس کے اندر کوئی جوئے کا ہے کہ آپ کو کیسے یہ پیسے مل گئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک انعام ہے, یہ جوا نہیں ہے. جوئے کے اندر آپ کا جو راس المال ہے, اصل مال ہے, وہ بھی ڈوب جاتا ہے. یہ پرائز بانڈ آپ کے پاس بالکل سیو ہے اور یہ آپ کا اسی طرح محفوظ رہتا ہے. آپ کو بطور انعام تو انعام دی جا سکتی ہے, اور وہ بھی اسٹیٹ کی طرف سے ہے. اسٹیٹ کے 50 قسم کے بزنس ہیں بینک کے علاوہ بھی. ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ بہن کے گھر جو ہے وہ اعتکاف, ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میں اپنی بہن, اب میرے گھر چھوٹا ہے, اپنی بہن کے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہوں. بہرحال میں تو اپنی بہن سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں اعتکاف کو فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اور خواتین تو ویسے بھی ایک شوق سے کرتی ہیں. محلے کے اندر مرد بھی, ایک مرد مسجد کے اندر بیٹھ جائے, جیسے جو حالات ہیں واقعات ہیں, تو ایک بھی بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو جائے گا. اور خواتین کے لیے ویسے بھی نہیں ہے, لیکن دوسرے جا کے بہن کے گھر بیٹھنا, وہاں شرعی اعتبار سے بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے مشکلات ہیں. باقی ہم بالکل اس کو منع کریں گے. وہ سب کیا کہتے ہیں, آپ بیٹھنا چاہیے. میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ اگر ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے اور وہاں دوسرے گھر میں یعنی بہن کے گھر میں کچھ پردے کا اہتمام بالکل ہے تو اجازت ہو سکتی ہے, لیکن معاشرتی پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور ایسے کئی کیسز میرے پاس آ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, کہ مطلب شریعت مطالعہ میں, جسے اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جیسے شریعت میں آپ یہ دیکھیں کہ ساس جو ہے وہ ماں کی جگہ ہے. علامہ صاحب ایسا ہی ہے, لیکن ساس اگر جوان ہو تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سفر میں اس کے ساتھ داماد اکیلا جا سکتا ہے یا نہیں. شریعت کی اجازت الگ جگہ ہے, لیکن علماء منع فرماتے ہیں. تو اس لیے علامہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. تو ہم کہیں گے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, سنت موقع علی الکفایہ ہے. تو آپ نہیں کریں گی تو کوئی خدا نخواستہ گناہگار نہیں ہوں گی, اور وہاں پر جانے میں اندیشے زیادہ ہیں, اس لیے ہم اجازت نہیں دیں گے. خرابیاں بہت زیادہ ہیں. ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ دیکھیں 1 لاکھ روپے میرے پاس ہیں. اچھا دوسرا پھر وہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے حاشیہ پردازی یہ فرمائی, کہنے لگے کہ زکوٰۃ تو چونکہ 7.5 تولہ سونے پہ ہوتا ہے, تو 1 لاکھ زکوٰۃ سے بچنے کے راستے یار علامہ صاحب استغفر اللہ. دیکھیں اس کا بار بار ہم عرض کر چکے ہیں, دینے میں تو 2.5% ہے. دیکھیں ہم بار بار اس کا عرض کر چکے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا اس وقت ہے کہ صرف آپ کے پاس سونا ہو. 52.5 تولہ چاندی اس وقت ہے کہ صرف آپ کے پاس چاندی ہے. لیکن آپ کے پاس مال جب ہوگا تو اس کو چاندی کے حساب سے دیکھا جائے گا. اب آپ کے پاس چونکہ 1 لاکھ روپے ہے, اور 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتا ہے 50-55 ہزار, اس لیے سال کے گزرنے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جی علامہ صاحب, شرجیل صاحب. جی 50,000 روپیز پہ کتنی بنتی ہے؟ تو 40واں حصہ یعنی 2.5% تو 1250 روپے بنتی ہے اس پہ. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ والد مرحوم یعنی والد انتقال کر چکے ہیں اور ان کے والدین بھی ہیں. ظاہر اب جو انتقال کر چکے میت ہیں جن کی وراثت ہے تو ان کی اولاد بھی ہے, والدین بھی ہیں. تو قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر اس میں یوصیکم اللہ والی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, کہ والدین یعنی میت نے والدین چھوڑے ہیں, اگر میت کی اولاد بھی ہے تو والدین کا 6واں حصہ ہوگا. تو یعنی آپ کے دادا کا یا دادی بھی ہے تو 6واں حصہ ان کا ہوگا, ان کو دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کا آپس میں تقسیم ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے. دعا کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس طریقے سے اٹھائے کہ دونوں ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں آسمان کی طرف ہوں. کبھی آپ نے یوں بلند بھی فرمائے ہیں سینے کے مقابل, اور کبھی اس طریقے سے آپ نے بلند فرمائے کہ بغل کی سفیدی مبارک بھی نظر آئی ہے. تو تینوں طریقوں سے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. ہاتھ جوڑ کر بھی یوں رکھ سکتے ہیں, یوں بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یوں کرنا
یوں کرنا، انگلیاں چٹکانا، یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ بیٹی کا نام حمنا ہے، بیٹے کا نام حمان رکھا، اور لوگ کہتے ہیں حمان جادوگر کا نام ہے، تو حمان واقعی کافر کا نام ہے۔ آپ نے حمان رکھا، ہو سکتا ہے کچھ مطلب اس کا نکل رہا ہو حمنا کے حوالے سے کہ مادہ ایک ہے، کوئی مطلب نکل رہا ہو، لیکن کوئی اسے حامان نہیں کہے گا، سب اس کو حامان کہیں گے، تو ایک برے نام کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ کوئی اور نام رکھ لیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ سحری کے لیے نہیں اٹھ پائے، سحری کے لیے نہیں اٹھ پائے، اور جب اٹھے تو نیت کیا ہوگی؟ تو نیت اردو میں یہ کر لیں کہ میں آج کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں بس۔ اور ایک سوال یہ پوچھا کہ نوری آباد گئے اور وہاں سخت پیاس کے عالم میں، نہیں بتایا، سخت پیاس کے عالم میں انہوں نے پانی پی لیا، تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیں کہ اگر انہوں نے رات کو نیت کی تھی، میں چند صورتیں بتا، رات کو نیت کی تھی اور اس طرح آ کر انہوں نے سخت پیاس نہیں تھی اور پانی پی لیا، تو اس میں غذا اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ مزہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو اس میں اگر اس طریقے سے ہوا تو اس میں قضا بھی کفارہ بھی، قضا ایک دن قضا روزہ رکھنا پڑے، کفارہ 60 دن متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ جی جی، اور اگر واقعاتاً اچھا یہ کہ غذا بھی تھا، مزہ بھی تھا، یعنی ذائقہ بھی تھا، لیکن رات میں نیت نہیں کی، صبح کی، تو اس صورت میں قضا ہوگا، توبہ ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سخت پیاس ہے اور خدا نہ خواستہ بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور یہ بندہ اپنا حال جانتا ہے، اس صورت میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس صورت میں اگر ایسا ہوا ہے تو بر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ان کو ایک قضا روزہ رکھنا ہوگا، ایک روزہ۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ علامہ شرجیل صاحب، وہ جو بہن بیچاری بہت رو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو نکال دیا، اس کے حوالے سے معاشرتی اعتبار سے آپ کی چند کلمات کچھ سوشل کوئی موٹیویشنل کوئی لے کے بھی نہیں جا رہے، میسج ہو، کوئی جملے ہوں چند؟ دیکھیں زندگی چیلنجز کا نام ہے، اور اچھے اور مضبوط افراد اور مضبوط لوگ اور شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر کے اپنے رشتوں کو سنبھالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل بہادری یہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایکشن کا ریاکشن دکھایا، اس نے ایک دیا، آپ نے دو مارے۔ تو یہ ہماری تربیت اس طرح ہونی چاہیے آج ہمارے نوجوانوں کی بھی، کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کنٹرول، یو شوڈ ہیو کنٹرول آن یور نروس، اپنے نفس پہ کنٹرول، ضبط، برداشت، یہ چیزیں پیدا کریں، اس سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں اور خوشحالی آتی ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، آج کے نعمت افطار کے بزم علماء میں ہم نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ سبق ہمیں ملا ہے، اس سبق کو صرف سننا نہیں ہے، اس سبق کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں انہوں نے فرمایا نا علامہ شرجیل احمد خان نے ابتدا میں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی میں جو ہمارے چیلنجز ہیں حقیقتاً یہی ہے، صرف کہہ دینا، سن لینا، یہ کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ، لسننگ، رائٹنگ، ریڈنگ، صرف یہیں تک نہیں ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین تو میدان عمل میں آنے کا نام ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں یا آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ خود الحمدللہ بدرجہ اتم اس وصف خاص میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ 40 سال تک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا پوری بنی نوع انسان کو کہ انسان کیسا ہوتا ہے، اور 40 سال کے بعد آپ نے دعوی نبوت کر کے بتایا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے۔ تو انسان سب سے پہلے تو انسان بنے، اپنے اندر جذبہ انسانیت ہے اسے بیدار کریں، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی، جس طرح آج رشتہ داروں کے حقوق پر بات ہوئی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں جاتے جاتے 1-2 منٹ آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہونے کے بہانے نہ ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کے بہانے ڈھونڈیں۔ کوئی ایسی ان کی دعوت کر لیا کریں، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، کوئی خود ان کی دعوت پر چلے جایا کریں، وہ نہ بلائیں تب بھی چلے جایا کریں، لیکن بوجھ نہ بنے کسی پر، لیکن جا کر محبتیں بڑھائیں، مل جل کر رہیں، کہ ہم مل جل کر رہنا ہی ہمارے دین متین کی اصل ہے، یہی ہماری اساس، یہی ہمارا کلچر، یہی ہماری تہذیب، یہی ہماری اصل ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے کچھ وقت کے لیے بھی رخصت ہوں گے۔ علامہ صاحب مائک پلیز لگا لیں، کیونکہ گرد من کا جو حصار، آپ اپنا بھی حصار فرمائیں، ہم سب کا بھی حصار فرمائیں، ہمارا پورا کرو، دیکھیں پوری ٹیم کہہ رہی ہے کہ علامہ صاحب جو ہے وہ گرد من کے بغیر جو ہے آپ سائن آؤٹ نہیں کریں۔ اچھا جی، ہم بریک پر جائیں گے علامہ صاحب کے حصار دعا کے ساتھ، اور اس کے بعد سلمان عالم ممتاز نوجوان ثنا خواہ میں جوائن کریں گے۔ ممتاز عالم دین علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ علامہ صاحب پلیز۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، کافہ یا عین صاد کفایتنا،
حامیم عین سین قاف حمایتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبور علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین کہ گرد خانائے من گرد خانائے من گرد زنوں فرزندان من گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ غنی ماسٹر ہے بس. خزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان بخشش و مغفرت